Good morning, class 11. Let's continue our topic of unit number 5 of chapter number 5, Introduction to Problem Solving. In last video session, we learned about algorithms, flowcharts, how to solve problems, modular programming, and etc. In flowchart, we talk about what is flowchart and what are the symbols and the purposes for flowchart. Here are few symbols like ellipse shape, we use it for start and stop. Rhombus shape we use for input and output. Rhombus, or you can say parallelogram. Next, rectangle shape we use for processing, and diagonal shape, not diagonal shape, diamond shape we use for decision box. Circle, small circle, here it is used for connector, and arrows are used for flow of control. So moving next, we are having writing algorithms. Okay, in writing algorithms, to write algorithms, such a language should be used that close enough to the programming language. आप कोशिश कीजिए वो लैंग्वेज यूज़ करने की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियर हो. ठीक है, सो दैट इट बिकेम ईजी टू ट्रांसलेट योर लैंग्वेज टू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Okay, next we are having identifiers. So we learn in previous chapters that what are identifiers. They are the naming variable. They are the arbitrary of long sequence that are used to name the variables. Next we are having assignment. So how to assign? The assignment of values of variable is done through the assignment statement as variable and an expression. Like if you want to assign 10 a number to a variable a, सिंपली व्हाट वी विल डू, ए एरो 10, और जो एरो होगी वो आप किसकी साइड होगी, ए की तरफ होगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है? द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड in sequence of top to down, one after the another step must be listed in the correct order. Statements, as we know that जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था सीक्वेंस सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, तो सीक्वेंस में क्या होता है, आपके पास जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में रन कर रहे हैं. हमेशा और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच नहीं होता है, बट कुछ में बॉटम अप भी होता है. बट इन एल्गोरिथम्स हम कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, टॉप टू बॉटम, इवन इन फ्लो चार्ट्स ऑल्सो. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेक्शन एंड द कंडीशनल स्टेटमेंट. In selection and the conditional statement we are having if and else condition. First that is अगर सिर्फ if condition है, या फिर we are having both if and else condition. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है repeating loop statement. In repeating loop statement we are having loops like for loop and the while loop. इन फॉर लूप वी आर हैविंग लाइक आपने कोई भी कंडीशन दी है लूप में, आपका लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती. जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आके बाकी का प्रोग्राम रन करेगा. ओके, दिस इज़ वाइल लूप. इसमें हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई है और वाइल लूप जब तक ये ट्रू है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं. दिस इज़ अ कंप्लीट वाइल लूप प्रोसेसिंग. अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो कहाँ पे होगा, बिल्कुल एंड में, दैट इज़ आउट ऑफ द लूप. Okay, next we are having an example. First consider this example. Draw a flowchart to add two numbers along with algorithm in simple English. So this is the flowchart. Just a minute. This is the flowchart and this is your algo. So flowchart की अगर हम बात करें, this is a start. जब आपने स्टार्ट किया आपको क्या चाहिए, पहले तो यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स. फॉर एडिंग टू नंबर्स आपके पास दो नंबर होने ज़रूरी हैं. ठीक है, लाइक रीड n1 दैट इज़ नंबर 1, रीड n2 दैट इज़ नंबर 2, एंड थर्ड वेरिएबल s नाम का या किसी भी नाम का आप रख सकते हैं फॉर स्टोरिंग द सम ऑफ टू वेरिएबल्स. ओके, तो s इक्वल्स टू n1 प्लस n2, प्रिंट s एंड देन स्टॉप. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम देख लीजिए आप. स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 गेट टू नंबर्स n1 and n2,
So this is about our first example. Now we are having next example, that is draw a flow chart to calculate 2 to the power 4 along with the algorithm in simple English. So in simple English still means कि आप pseudo code use कर सकते हैं. That means in term of writing sentence in proper grammar, use connectors, flow of controls. Okay. So algorithm we are having first step, input base and the power. क्या बेस है और क्या पावर है वो इनपुट करवा लें. फिर स्टेप 2 हमें क्या करना है, असाइन करना है बेस की वैल्यू किसको, प्रोडक्ट को. और फिर प्रोडक्ट को वैल्यू क्या करना है, प्रोडक्ट इनटू बेस, अगेन प्रोडक्ट इनटू बेस, प्रोडक्ट इनटू बेस, फाइंड प्रोडक्ट, प्रिंट प्रोडक्ट एंड स्टॉप. So here we are having in base 2 and the power is 4. So we have taken a variable named product और प्रोडक्ट को हमने किसकी वैल्यू असाइन कर दी है, बेस की. ठीक है. सो मान लीजिए प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं है और बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, 2. सो 2 इंटू बेस, ओके, 2 to the 4. नेक्स्ट अगेन फिर से मल्टीप्लिकेशन, अगेन फिर से मल्टीप्लिकेशन एंड द प्रोडक्ट. Next we are having a topic pseudocodes. There are various examples for flowchart and algorithms. I will send it in the WhatsApp group. Next we are having pseudocode. So what are pseudocode? Pseudocode is an informal way of describing the steps of the program solution without using any strict programming language, syntax or underlying technology consideration. हम प्रॉपर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्प्लीटली यूज़ नहीं करते हैं, बट हम कुछ ना कुछ टर्म मतलब आसपास का लमसम चीज़ें ऐसे ही लिखते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ. तो एडवांटेजेस क्या हैं सूडो कोड के, इट यूजेस अ लैंग्वेज सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश, थस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं. इट हाईलाइट्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम इज क्लियरली विजिबल थ्रू सूडो कोड्स. Pseudocode can be easily modified without worrying about the dependencies. अब disadvantages क्या हैं, it is not visual look like a flowchart. flowchart की तरह नहीं लगता है. Since there is no expected standard for pseudocode, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया है. सो इट वेरीज फ्रॉम प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर. हर प्रोग्रामर का अलग हो सकता है. लाइक अगर मैं चाह रही हूँ मैं इनपुट को INP लिखती हूँ, ठीक है, इट्स अ सूडोकोड, बट ज़रूरी नहीं है कि दूसरा यूज़र भी उसको पूरा INP ही लिखेगा. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी टेस्टेड ऑन पेपर. देयर इज़ नो प्रोग्राम अवेलेबल टू टेस्ट इट. नेक्स्ट, इट इज़ एन इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. Next we are having a term dry run. Okay, so what is dry run? A dry run is a process of a programmer manually working through their codes to trace the value of variable. There is no software involved in this process. जो हम orally values put कर करके कोई भी प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं अपने आप, वो क्या होता है, ड्राई रन. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ड्राई रन के, इट इज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस. इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लॉजिक एरर्स इन अ कोड. इट कैनॉट फाइंड द एग्जीक्यूशन एरर इन द कोड. ड्राई रन में कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है. किसने किया 22? So before running a program through a dry run, let's have an example. Write pseudocode that converts the Fahrenheit to Celsius or from Celsius to Fahrenheit depending the user's choice. So for this, first of all हमें क्या करना होगा, enter 1, press 1 to convert Fahrenheit to Celsius and second to Celsius to Fahrenheit. ठीक है, these are the two choices. Apart from that, we must have a temperature.
फॉर दैट टेम्परेचर और नंबर जिसको आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है। वाई इनपुट आस्क व्हाट नंबर, इफ़ 1 इज़ प्रेस्ड, अगर 1 प्रेस किया गया है सो आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में टेम्परेचर वो चेंज करना है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है C इक्वल्स टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। F की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, नेक्स्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ सूडो कोड, आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखी गई है बट सिंपल इंग्लिश है विदाउट ग्रामर। Here we are having dry run the code given below and show its trace table, ठीक है। हमारे पास ये कोड दिया हुआ है और यहाँ पे ये क्या है, इसकी ट्रेस टेबल, दिस इज़ द ट्रेस टेबल। तो नम यूज़र इनपुट, यूज़र ने क्या इनपुट किया, अ नंबर, ठीक है। काउंट की वैल्यू क्या है, 0, वाइल द नंबर इज़ लेस देन 500, ठीक है। लेट द जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है दैट इज़ 16 इज़ लेस देन 500, वैल्यू इज़ ट्रू। अब क्या करना है हमें, नंबर में जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज़ नंबर इंटू 2, 16 इंटू 2 दैट इज़ 32। अब अगेन फिर से वो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी फिर से लूप क्या होगा, यहाँ पे आएगा। जब लूप यहाँ पे आएगा अगेन 32 इज़ लेस देन 500, कंडीशन इज़ ट्रू। अगेन 32 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 64, ओके। जो आपका काउंट है वो हर बार इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ काउंट प्लस 1, 0 1 2 3 4 तब तक होगा जब तक आपकी जो नंबर में वैल्यू है वो 500 से बड़ी नहीं आती। एज सुन एज वैल्यू बिकेम 512, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एज सुन कंडीशन फॉल्स हो गई, हम क्या करेंगे, हम लूप से बाहर आके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, प्रिंट नाम। अब नाम की रिसेंट वैल्यू क्या है, रिसेंट वैल्यू इज़ 512, प्रिंट काउंट की रिसेंट वैल्यू क्या है, 5। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज़ 512 एंड 5। तो इन दिस प्रोग्राम अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आएगा दैट यू हैव टू ड्रॉ, राइट एन एल्गोरिदम, ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट अ सूडो कोड और ड्राई रन अ program. These are the questions that may come, but let me know you one more thing, that this chapter is not included in your half yearly. I am covering this chapter for your final examination. Thank you students.